Dear students, today we are going to start arithmetic progression. How you can find the first term and the common difference of given AP. Before this, I would like to clear you again in this video. Check whether this series in AP or not. Let's see. For example, you are having the terms 3, 7, 11, 14 up to so on. We have to check whether this given sequence is in the form of AP or not. Let's see. In the previous video, I explained how to check this is in AP or not. This is the first term, हम इसको बोलते हैं A1. This is the second term A2. This is the third term A3. This is the fourth term A4. What is the condition to check whether this given sequence is in AP or not? The condition is the common difference between two consecutive terms must be same. Let's see. Firstly, we will see A2 minus A1. That is 7 minus 3, it is 4. Then A3 minus A2 is equal to 11 minus 7 is equal to 4. A4 minus A3 equal to 14 minus 11, that is again that is 3. It means the common difference is not same. Not same. क्या same नहीं है? Common difference. It means this sequence is not in the form of AP because the common difference is not same. तो लिखेंगे कैसे? No, the given sequence is not in the form of AP. AP means arithmetic progression because the common difference is not same. हमने कम से कम 3 कॉमन डिफरेंस फाइंड करने. क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट 2 में सेम आ गया, कई बार सेम आ जाता है, तो आप जब थर्ड निकालेंगे तो अगर उसमें भी सेम आता है देन इट इज इन AP. अदरवाइज इफ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन द ऑल, इट मीन्स इट इज नॉट फ्रॉम AP. नाउ I will explain with the help of one more example. Suppose I have written here 7, 7, 7, 7 up to so on. Check whether this sequence is in AP or not. We have to check करना है. We have to check this sequence is in AP or not. Let's see. Solution 7, 7, 7, 7 up to so on. हमारा रूल सेम होगा. What we write here? A1, A2, A3, A4. So according to rule, we have to check A2 minus A1. That is 7 minus 7, 0. A3 minus A2,
that is 7 minus 7, that is again 0. I have told you, you have to check at least 3 common difference, means A4 minus A3, that is again 7 minus 7, 0. Here common difference is same. In all cases common difference is same, so we can say therefore yes, the given sequence is in AP. अगर कॉमन डिफरेंस सभी में सेम आया है तो हम कह सकते हैं कि जो हमें गिवन सीक्वेंस दी है वो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. नाउ suppose I am having one AP 3, 5, 7, 9 up to so on is in AP. Find its first term and common difference. This is A1, this is A2, this is A3, this is A4. तो जब हम AP में फर्स्ट टर्म लिखते हैं सबसे पहले उसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से. मीन टू से सिंबल्स कौन से यूज़ करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम जब डिनोट करते हैं वो स्मॉल ए से डिनोट करते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को जब डिनोट करते हैं तो वो हम स्मॉल टी से करते हैं. क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म मीन्स A1. तो A1 किसके इक्वल हुआ, A के. फर्स्ट टर्म राइट हियर फर्स्ट टर्म इज A1. जो हमारी पहली टर्म है वो A1 है. हम फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं. मीन टू से कि A1 और A बोथ आर सेम. तो कितना है हमारे पास 3. फर्स्ट आंसर फर्स्ट टर्म इज 3. नाउ कॉमन डिफरेंस. C मीन्स कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे. अब इनमें उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये AP में है. अगर ये ऑलरेडी AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा. जैसे 5 में से 3 माइनस किया 2, 7 में से 5 किया 2, 9 में से 7 किया 2. तो हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1, दैट इज 5 माइनस 3 विच इज 2. इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2. फर्स्ट टर्म इज A, दैट इज 3. Common difference is 2. Now next question. Clear बच्चे? It means जब आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, whatever is the फर्स्ट टर्म जो हमारी सबसे पहली टर्म है दैट इज अवर फर्स्ट टर्म, तो उसको डिनोट करना है स्मॉल ए से. इसके बाद स्मॉल ए और A1 बोथ आर द सेम. तो एक ये कितना हो गया 3. देन कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, हम A2 में से A1 को माइनस कर दें या A3 में से A2 को माइनस कर दें और A4 में से A3 को माइनस कर दें. बोथ आंसर्स विल बी सेम, क्योंकि हमें पता है कि जब ये सीक्वेंस AP में है तो अंडरस्टूड है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा. इट मीन्स चाहे A2 में से A1 को माइनस करें, A3 में से A2 को माइनस करें, A4 में से A3 को माइनस करें, ऑल विल बी सेम. इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1 इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2. तो बोथ आंसर्स आर हियर. A इज इक्वल टू 3,
CD means common difference is 2. Clear? Now next, in your फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। इसके लिए हम पहले अपना फॉर्मूला बनाएंगे। क्या है, मान लो आपके पास एक एपी गिवन है। एपी क्या गिवन है, सपोज आपके पास लिखा है, कोई भी लिख लो आप, यहाँ पे है 3 है, यहाँ पे 6 है, फिर है 9 है, इसके बाद ले लो 12 ले लो, ये क्या है आपकी एपी। ये सारी टर्म्स किस में है, एपी में है। इस एपी को ऑब्जर्व करके हम कोई जनरल टर्म फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिखने लगी मैं जनरल टर्म। I will explain it again by taking this example. बड़े ही ध्यान से देखना है, ये क्या है, A1, A2, A3, A4, चलो एक और ले लेते हैं, A5, एक और लेते हैं, A6। मैंने थोड़ी टर्म्स ज़्यादा ले ली है आपको क्लियर करने के लिए। सम फॉर्मूला वी विल फाइंड हियर। वो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जिसको बोलते हैं जनरल टर्म। जैसे हम कहते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है, ये सेवन टर्म है, अप टू सोन। कोई तो ऐसी टर्म होगी जो हम एंड तक लेके जाएंगे, उसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म। इसका मतलब आपने an का फॉर्मूला बनाना है। an मीन्स nth टर्म। ये फॉर्मूला कैसे आया आप इस एग्जाम्पल से देखेंगे। बड़े ही ध्यान से देखना है आपने बच्चे। ये क्या है, 3। ओके, आई विल राइट हियर 3। 3 में आपने कितना ऐड किया कि 6 बन गया 3, तो ये इसको मैंने लिख दिया। 6 को मैं आप ऐसे लिख सकती हूँ 3 + 3, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। नेक्स्ट 6 में मैंने क्या किया, फिर क्या किया, 3 को प्लस कर दिया, तो इसको मैं लिखूंगी 3 + 3 + 3। क्यों लिखा, ये दोनों लिख लिए। उसके बाद इस 6 में मैंने ये 3 और ऐड कर दिया। अब इसकी टर्म आ गई, इसको मैं लिखूंगी पहले ये सारा 3 + 3 + 3 + 3। ये प्रीवियस टर्म थी सारी, उसमें मैंने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। जब मैंने इसको लिखा तो क्या लिखा, पहले ये सारा 3 + 3 + 3 + 3 + 3, ये 4 बार था, ये हो गया 4 बार, इसमें 3 ऐड कर दिया। अब एक और लिखूंगा आपको समझाने के लिए, ये सारा लिखेंगे 3 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ये पहले वाला था, उसमें मैंने एक और 3 ऐड कर दिया। ठीक है। नाउ अब आप सोचेंगे कि मैम क्या 3 3 लिख रहे हैं, यहीं से मैंने एक फॉर्मूला बनाना है। ये मैंने 3 लिखा, इसको मैं लिख दिया 3 + एक बार 3। इसको जो मैंने लिखा वो मैंने लिख दिया 3 + 2 × 3, ये 2 बार 3 ऐड कर दिया। इसको जब लिखा 3 + 3 बार 3, जब मैंने इसको लिखा तो लिख दिया 3 + 4 × 3, इसको लिख दिया 3 + 5 × 3 up to so। ये 3 वैसे लिख दिया मैंने, इस पहले वाले 3 को लिख लिया, और जो पहले 3 के बाद 3 आया उसको लिख दिया 3 एक बार और। इसमें फर्स्ट 3 जो लिख लिया मीन्स आपने फर्स्ट टर्म सभी की सेम लिखनी है, और जो बाकी बचता है उसको किसी में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म 3 है तो हमने लिख दिया 3। अब इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी बन गई, 3, और 3 एक बार आया उसको लिख दिया 1 × 3 मीन्स 3 1 टाइम। ये फर्स्ट टर्म 3 लिख दी। अब ये 2 बार 3 है, 3 + 3 मीन्स 3 आया है 2 बार, इसको मैं 2 × 3। अब ये फर्स्ट 3 मैंने लिख दिया, ये 3 3 3 कितनी बार, 3 बार आया, तो मैंने लिख दिया 3 × 3।
3 वैसे लिख दिया, 3 अगला 1 2 3 4, 3 कितनी बार है 4 टाइम्स। इसको 3 वैसे लिख दिया, 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 टाइम्स 3। यहाँ से हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे, तो ये देखें इसके साथ मैं लिख सकती हूँ 0 टाइम, मीन्स इसके बीच में 0 टाइम 3 है, इसमें ना भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आप ऑब्जर्व करते हो, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, ये भी फर्स्ट टर्म, ये भी फर्स्ट टर्म, ये भी फर्स्ट टर्म, ये भी फर्स्ट टर्म, ये भी फर्स्ट टर्म। इट मीन्स आप चाहे कोई भी टर्म निकालो, उनमें सभी में फर्स्ट टर्म तो आएगी, सभी की सेम आएगी। उसके बाद क्या है, अगर आपने सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो 1 टाइम कॉमन डिफरेंस आया, अगर थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। ये ब्रैकेट में जो 3 है ये आपका कॉमन डिफरेंस है। सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो कॉमन डिफरेंस के साथ 1 लगाया है, थर्ड टर्म करनी है तो कॉमन डिफरेंस के साथ 2 लगाया है, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो कॉमन डिफरेंस के साथ 3 लगाया है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो कॉमन डिफरेंस के साथ 4 लगाया है, सिक्स फाइंड करनी है तो कॉमन डिफरेंस के साथ मैंने 5 लगाया। इट मीन्स अगर मैंने सेवंथ फाइंड करनी होती तो कॉमन डिफरेंस के साथ 6 आता। इट मीन्स जो भी हमने टर्म फाइंड करनी है उसके साथ एक उसका प्रीवियस टर्म आएगी। अगर मैंने 8th टर्म फाइंड करनी है तो कॉमन डिफरेंस के साथ 7 आएगा। अगर 20th टर्म फाइंड करनी है तो कॉमन टर्म के साथ किससे मल्टीप्लाई होगी, 19 से, उससे एक कम होगी। अगर मैंने 100th टर्म फाइंड करनी है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस के जो आगे है किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 99 से। और इससे पहले सभी के साथ ए को फर्स्ट टर्म को प्लस करना ही करना है। नाउ अगर मैं पूछती हूँ आपने A27 टर्म फाइंड करनी है तो इसका मतलब ए पहले फर्स्ट टर्म तो आनी प्लस डी भी आना है, लेकिन कितनी बार डी आना है, इसको 26 टाइम डी। क्लियर। सपोज आपने फाइंड करना है A1000। अब 1000 टर्म फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो इजिली वी कैन फाइंड। जैसे लिखा है A1000 मीन्स 1000 टर्म आपने फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पहले जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी वो लिखेंगे, फिर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो लिखेंगे, लेकिन कितनी बार कितनी टाइम्स, इससे एक कम। 1000 है इसको 999 टाइम्स डी लिखेंगे। सपोज आपने 215 टर्म फाइंड करनी है, A215 फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म फिर प्लस फिर कॉमन डिफरेंस, लेकिन कॉमन डिफरेंस के आगे कितना, इससे एक कम 214। इसमें आप ब्रैकेट लगा लो तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है। क्लियर। इससे हम एक जर्नल फॉर्मूला बनाते हैं। जर्नल फॉर्मूला किस लिए, AP अप टू nth टर्म। nth टर्म का मतलब आपने लास्ट टर्म ली है, तो अब हमें AN का फॉर्मूला बनाना है। अब मैं इसको रब करने लगी, AN। तो AN का फॉर्मूला क्या होगा, AM को बोलते हैं लास्ट टर्म, इसको हम L से भी डिनोट कर देते हैं। तो AN का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए पहले क्या आएगी, फर्स्ट टर्म A, उसके बाद एंड में क्या लगाना है आपने D, लेकिन उससे मल्टीप्लाई क्या करना है, जितनी टर्म्स हैं उसमें से 1 माइनस करना है। अगर यहाँ पे 20 होता तो यहाँ पे 19 आता, अगर यहाँ पे 15 होता तो यहाँ पे 14 आता, अगर यहाँ पे 99 होता तो यहाँ पे 98 आता, मीन्स 99 माइनस 1। अब n है, n की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये n हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे n क्या है हमें नहीं पता, तो इसका जितना भी n होगा उसमें से एक
1 को माइनस कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला जो है टर्म फाइंड करने का है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन इज कि हमने कोई ना कोई टर्म फाइंड करनी है। सपोज आई एम हैविंग 1 AP, सपोज मेरे पास है 1/2, 1, 3/2, 2, 1, 1/2, 3/2, 2 up to so R in AP। ये पता है हमें AP में है। फाइंड द 15th टर्म ऑफ गिवन AP। जो आपके पास AP है उसकी आपने 15th टर्म फाइंड करनी है। हाउ यू विल फाइंड? पहले लिखेंगे आपने A15 फाइंड करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A15? तो A15 का मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला समझाया है। जितनी टर्म आपने, जोन सी टर्म आपने फाइंड करनी है उसमें से एक कम कर दे। अगर ऐसे नहीं याद रहता तो आप लिखेंगे A, फर्स्ट टर्म तो लिखनी है, पीछे D भी लिखना है और इसके साथ क्या लिखना है, इससे एक कम। आप लिख सकते हो 15 - 1, लेकिन अब आपको याद हो गया तो पता है आपने इसको 14 ही लिखना है। इसका मतलब A15 फाइंड करने के लिए एक तो आपको A का पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, एक D का पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस क्या है। लेट्स सी व्हाट इज A। आप बता सकते हैं इसमें A ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है, A3 है, A4 है, अप टू सून। तो हमारी A1 क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन गई, A। तो A कितना आ गया हमारे पास, 1/2। आगे क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम D से लिखते हैं। तो D कैसे फाइंड करते हैं, A2 में से A1 को जब माइनस कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1। A2 क्या है, 1 है, A1 क्या है, 1/2। वी विल टेक द एलसीएम। एलसीएम हियर 2, 1, इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या है 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 को 2 से किया 1, 1/2। तो D कितना आया, 1/2। नाउ फिल ऑल द वैल्यूज हियर। A15 इक्वल टू A कितना है हमारा, 1/2 प्लस 14 इंटू D कितना है, 1/2। अब ध्यान रखना है 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे बॉड मास का फॉर्मूला लगाना है। पहले क्या करना है, इसको ब्रैकेट को करना है। ब्रैकेट में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इसको करेंगे पहले 1/2। ये 2 से 14 का तो कितना आ गया, सॉरी 7 आया, 7। अब क्या है, प्लस का साइन है, तो विल टेक द एलसीएम 2 हियर, तो ये आ गया 1 प्लस 14, तो बन गई 15/2। तो A15 हमारा जो आंसर आया 15/2 आया। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि आप 20th टर्म फाइंड करें, 29th टर्म फाइंड करें, कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाए तो इजिली यू कैन फाइंड। नाउ नोट करना है कि कोई भी जब टर्म आएगी ना, वो पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है, वो नेगेटिव आंसर भी आ सकता है। लेकिन